Hey guys, good evening. This is Rajiv. We are from Trinity International School, and today we are going to do chapter number 6, that's geometry. This would be for class 2. Yep. So, to start with this chapter, what we'll be doing is we'll be learning about the basic shapes. Okay. Now, when we are talking about geometry, the first figure what we are going to learn about is square. That's SQUARE. Huh? Square is a four-sided figure. Square में कितने sides है? चार. One, ये एक side है. This is the second side. This is the third side, and this is the fourth side. हाँ? तो square में पहला चीज क्या सीखा हमने? It has four sides. Now the second thing what we are going to learn here is we'll see the measurement. Measurement मतलब हर एक कितना लंबा है. जैसे कि if I put a scale here, if I see a measurement of this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ये line 10 centimeter लंबा है. So right here it's going to be 10 centimeter. So square में चार side है जिसमें से एक side 10 centimeter है. If I count or if I measure this one, this upper side, this is called the sleeping line or the horizontal line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so मुझे क्या पता चला? The standing line on my left hand side is 10 centimeter. The sleeping line on the top is again, I'm so sorry, it's again 10 centimeter. Now I'll check the sleeping line at the bottom. नीचे वाला sleeping line देता हूँ कितना है? Again it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये भी 10 है. Now I need to check the standing line on my right hand side. Even if I measure this one, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so मुझे क्या पता चला? स्क्वायर में दो चीज़ सीखा मैंने. एक, स्क्वायर has four sides, 1 2 3 4. क्लियर? सो चल मेरे साथ बोलो, स्क्वायर में कितने साइड्स है? चार साइड्स है. 1 2 3 4. और जब मैंने स्क्वायर लाइन, हाँ ना, इसको वी कॉल इट साइड्स. कितने साइड्स है? चार साइड. हर एक साइड को जब मैंने मेजर किया, हाँ ना, इफ आई मेजर दिस साइड आई गॉट अ 10. इफ आई मेजर दिस साइड इट्स 10. दिस साइड इज 10, अगेन दिस साइड इज 10. सो स्क्वायर में हर एक साइड क्या है? सेम है. अगर मैं बड़ा स्क्वायर लूंगा, अगर एक साइड 20 है तो ये ऊपर वाला लाइन भी कितना होगा? 20. इवन द साइड ऑन माई राइट हैंड साइड वुड बी 20. Even the bottom side would be 20. Clear? तो स्क्वायर में मैंने क्या सीखा हूं कि it will have four sides, and second thing, all the sides would be same, equal. Are we clear with this? Any doubt? और हर एक साइड में देखो, ये एक जाके एक कॉर्नर पे मिलता है, राइट? तो यहाँ पे एक कॉर्नर है. This is the second corner. This is the third corner. This is the fourth corner. Where जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इन कॉर्नर. तो यहाँ पे देखो, द स्लीपिंग लाइन एंड द स्टैंडिंग लाइन, इट इंटरसेक्ट्स. सो दिस साइड इज वन कॉर्नर. हियर द स्टैंडिंग लाइन एंड द स्लीपिंग लाइन इंटरसेक्ट. दिस इज द सेकेंड कॉर्नर. द स्लीपिंग लाइन एंड द स्टैंडिंग लाइन इंटरसेक्ट. दिस इज द थर्ड कॉर्नर. The standing line and the sleeping line intersect. This is the fourth. So in total we have 1 2 3 4 corners. We have 1 2 3 4 sides, and the measure of all the sides is equal. So this is what we have learned about the square. Now what we are going to do is we are going to learn about rectangle. So guys, I have already drawn a rectangle. Now we'll learn about rectangle. Square में क्या था? चार साइड जो स्क्वायर को बनाता है. In rectangle also we have four sides. 1 2 3 4. हाँ ना? So I'll write it. यहाँ पे एक साइड है, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड. So rectangle has four sides. Now स्क्वायर में कॉर्नर था तो यहाँ पे भी कॉर्नर है. दिस इज स्लीपिंग लाइन, दिस इज स्टैंडिंग लाइन. सो वी हैव वन कॉर्नर हियर. दिस इज माय फर्स्ट कॉर्नर. अगेन स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग, दिस वुड बी द सेकेंड. Sleeping, standing, this is my third corner.
standing and sleeping. This would be my fourth corner. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने क्या सीखा है? स्क्वायर हैज 4 sides, rectangle has 4 sides, square has 4 corners, rectangle also has 4 corners. स्क्वायर में क्या था? सब साइड सेम था. अब इसमें मेजर करके देखते हैं सब साइड सेम है क्या. चलो. Now if I take the side number 1, okay, this is 15. So I'll write here, this is 15 centimeter. If I go for the side number 2, this is 7 centimeter. If I go for side number 3, this is 15 centimeter. If I go for side number 4, again this is 7 centimeter. तो एक चीज़ तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ऊपर वाला लाइन है, जो स्लीपिंग लाइन, वो 15 है, तो नीचे वाला स्लीपिंग लाइन भी 15 ही है, बट बाजू वाले जो है वो अलग है. ये 15 है तो ये अलग है. सो यहाँ पे जो सामने है, आई कैन से ऑपोजिट. हाँ ना, सपोज अगर तुम लोग खाना खाने टेबल पे बैठते हैं एंड दिस इज वेयर यू आर सिटिंग एंड दिस इज वेयर योर डैड सिट्स. सो डैड इज सिटिंग ऑपोजिट टू यू, राइट? आपके सामने बैठा है. सो आई कैन से ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज सेम इन रेक्टेंगल. और यहाँ पे देखो, ये 7 है तो ये भी 7 है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे तुम लोग की सिस्टर्स बैठी है एंड इफ योर मॉम इज सिटिंग हियर, so opposite sides, if this is 7 so this is also 7, it's same. So in rectangle opposite sides are same. In square all sides are same. तो तुम लोग को पता चला, अगर मैं एक स्क्वायर शेप और एक रेक्टेंगल रखूंगा तो दोनों को 4-4 साइड है, दोनों में 4-4 कॉर्नर है, बट मेजरमेंट में मुझे पता चलेगा कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है. अपने घर पे देखो एग्जाम्पल, अगर आप तुम लोग आपकी खिड़की को देखोगे, बेसिकली विंडोज आर रेक्टेंगल. क्यों? बड़ा साइड होगा 2 और 2 छोटे साइड होंगे. खिड़की हमेशा रेक्टेंगल शेप में होगा. बट अगर तुम लोग घर पे चेस बोर्ड पे खेलते हो या फिर कैरम खेलते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल प्ले कैरम और चेस, सांप सीढ़ी में जो गोटी होता है ना, so those are square shape. हमेशा देखना उनके सब साइड सेम है. So it's very easy to identify. Square will have all sides same. Rectangle will have one of the pair of sides bigger and one should be smaller. In short, opposite sides would be same in rectangle. So this is how you will identify square and rectangle. Now what we will be doing is we'll be learning the third topic, which would be triangle. चलो guys, we learned about square, we learned about triangle, we learned about rectangle. Square और rectangle में क्या था कि they had 4 sides. इसमें काउंट करते कितने sides हैं? This is my side number 1, ये मेरा एक साइड है. This is my side number 2, ये मेरा दूसरा साइड है. And this is my side number 3. मतलब when I'm talking about triangle, it has only 3 sides. That is the reason they write tri. Tri का मतलब क्या है? 3. मतलब triangle has how many sides? 3 sides. Okay. So we learned about triangle which has 3 sides. और कॉर्नर कितना देखते हैं? चलो, 2 साइड जाके, okay, I got 1 corner here. This is corner number 1. यहाँ पे एक जुड़ा है corner number 2 and corner number 3. मतलब this is also tri. Tri मतलब 3 corners है. So easy to remember. Triangle में first sound which says tri means 3. इसका मतलब क्या है? 3. Triangle. So triangle will have 3 sides. Triangle will have 3 corners. Clear? So we learned about square which has 4 sides, 4 corner and all the sides are same. We learned about rectangle which has 4 sides, 4 corner. However, opposite sides are same. And we learned about triangle which has 3 sides and 3 corners. Now the next thing what we are going to learn is about circle. Okay. Now it's the time for circle.
CIRCLE। देखो व्हेन वी प्ले क्रिकेट खेलते हैं ना, तो तुम लोग बॉल देखा होगा, बॉल का कौन सा शेप है? राउंड, दैट सर्कल। अगर तुम लोग चाय पीते हो तो कप का साइज क्या है? राउंड, सर्कल। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राउंड, इवन द जीरो इज अ सर्कल। तो सर्कल का पहले करते हैं, देखते इसको कितने साइड्स है। अरे देयर इज नो साइड हियर। मेजरमेंट देखते हैं। हाँ, इट्स डिफिकल्ट टू मेजर। इन शॉर्ट, सर्कल के पास ना ही साइड है, नाइदर देयर इज अ मेजरमेंट विच वी कैन टेक। और कॉर्नर देखते हैं, चलो कॉर्नर मिलेगा क्या? कहाँ पे लाइन जॉइंट हो रहा है क्या? नहीं। दैट मीन्स सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। सिंपल टू रिमेंबर, सर्कल के पास कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? साइड भी नहीं है, कॉर्नर के पास कॉर्नर भी नहीं है। इट्स राउंड। सो वी हैव लर्नड अबाउट स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल. What we are going to do now is we'll be starting with question number 1. Yep, this is my question number 1. It says identify the shape of the picture given below. मतलब मुझे शेप देखना है और आइडेंटिफाई करना है। सबसे सिंपल वाला देखो, राउंड, दैट मीन्स दिस इज अ सर्कल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें देखो सब साइड सेम है, ये, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर। सो फॉर स्क्वायर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट एस। ओके, yep, so here we have the question, identify the shape of the pictures given below. You need to write S, that's for square. You need to write R, that's for rectangle. You need to write C for circle. You need to write T for triangle, and you need to write D for diamond, and SC for semicircle. Diamond part और semicircle I have not taught you, so वो हम लोग करेंगे, बट जो easy वाला वो पहले ख़त्म करते हैं। तो इसमें से देखो मैंने तुम लोगों को सिखाया ऑल साइड सेम मतलब स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा? आई नीड टू राइट एस। सामने के दोनों साइड सेम, हाँ, और 4, दैट्स रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल कैसे पता चलेगा? 4 साइड्स है, 4 कॉर्नर है, और ऑपोजिट साइड्स आर सेम, सो दिस इज रेक्टेंगल, दैट इज आर। आई एम टॉकिंग अबाउट अ राउंड शेप, दैट सर्कल, दिस स्टैंड्स फॉर सी। और दिस इज द इजिएस्ट वन, 1 2 3 साइड, 1 2 3 कॉर्नर, तो दिस इज अ ट्रायंगल, दैट्स फॉर टी। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टीचिंग यू अबाउट डायमंड एज वेल एज अबाउट सेमी सर्कल. ओके guys, as I mentioned, like we are going to clarify about diamond and square. तो देखो ये एक डायमंड और स्क्वायर दोनों डायग्राम बनाया, मैं I'll show you how to identify which one is square and which one is diamond. अगर तुम लोग पहले देखोगे वी हैव लर्नड अबाउट साइड्स, तो इसको कितने साइड्स है वी आर गोइंग टू काउंट नाउ. 1 2 3 4 साइड्स. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डायमंड उसमें भी काउंट कर लेता हूँ. 1 2 3 4, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायमंड एंड स्क्वायर दोनों के पास 4 साइड है, 1 2 3 4. डायमंड के पास 1 2 3 4. उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? कॉर्नर्स देखते कितना है. चलो ये 2 लाइन जुड़ा है, दिस इज कॉर्नर नंबर 1. यहाँ पे 2 जो है, दिस कॉर्नर नंबर 2, दिस इज कॉर्नर नंबर 3 एंड दिस इज कॉर्नर नंबर 4. The same way if I go here, this is corner number 1, corner number 2, corner number 3, corner number 4. मतलब एक स्लीपिंग और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला है. यहाँ पे भी देखो 2 लाइन जाके जुड़ रहा है, दैट्स अ कॉर्नर. तो दोनों के पास 4 कॉर्नर है. सो आई कैन से डायमंड हैज़ 4 साइड्स, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, डायमंड हैज़ 4 कॉर्नर्स, इवन स्क्वायर हैज़ 4 कॉर्नर्स. हम लोग मेजरमेंट देखते हैं क्योंकि स्क्वायर में सब साइड सेम होना चाहिए. सो दिस वन इज़ 1 2 3 4 5 6 7. इसका मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर. 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. चलो इसका काउंट करो सब लोग, मेरे साथ काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7. इसका भी 7. चलो ये भी, चलो वेरी गुड. सब जन मेरे साथ बाकी का काउंट करो.
1 2 3 4 5 6 7. तो मुझे क्या पता चला when I'm talking about square here all the sides are 7 centimeter. मतलब ये 7 centimeter है, ये 7 centimeter है, ये 7 centimeter, even this is 7. As we learned earlier, square के पास 4 साइड है, 4 कॉर्नर है और सब साइड सेम है. तो एक बार डायमंड का देखते हैं, डायमंड के पास क्या है. चलो मेरे साथ प्लीज़ काउंट करो सब जन. 1 2 3 4 5 6 7. मतलब डायमंड में ये साइड 7 सेंटीमीटर है. I'll check the measurement of the other side. 1 2 3 4. So sorry, 1 2 3 4 5 6 7. Even this side is 7 centimeter. I'll go for the other one. That's 1 2 3 4 5 6 7. इसका भी 7. 1 2 3 4 5 6 7. चलो, तो मतलब स्क्वायर और डायमंड में सब चीज़ सेम है. 4 साइड 4 साइड, 4 कॉर्नर 4 कॉर्नर, हर एक साइड सेम मेजरमेंट, इसमें भी सेम. बट आप लोग देखो, यू कैन आइडेंटिफाई दोनों देखने में सेम है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब स्ट्रेट है लाइंस. स्लीपिंग लाइन स्ट्रेट, स्टैंडिंग लाइन स्ट्रेट, बट यहाँ पे देखो टेढ़ा है. सो the best way to identify square and diamond is square will have everything straight or you can say 90 degree and diamond will have slanting. तुम लोग पतंग उड़ाते हो ना, that is almost a diamond shape. But अगर तुम लोग कैरम खेलते हो तो that's a square shape. कैरम कैसा है? स्क्वायर शेप में. और पतंग जो उड़ाते हैं that is almost like a diamond shape. So this is how you are going to identify diamond as well as square. Now what we are going to learn about a semicircle. सो वेन अब तुम लोगों ने पहले पढ़ा था दिस इज अ सर्कल, हाँ ना. सेमी का मतलब क्या है? व्हेन आई राइट सेमी, सेमी का मतलब हाफ, हाफ मतलब आधा. दैट मीन्स आधा सर्कल, सेमी सर्कल. इट कैन बी एनी शेप. जैसे कि अगर मैंने सर्कल बनाया और मैंने इसे स्ट्रेट लाइन मारा, so half circle, half means semi, so I can say this is a semicircle. So what we have learned about a diamond which has slanting line, and I've learned about semicircle. Semicircle means it's half circle. So now we'll get back to question number 1. It says this figure. अब ये फिगर देखो कैसा है. ये फिगर में देखो 3 साइड है. So basically this is a ट्रायंगल. ये देखो आधा सर्कल है, हाँ ना. अगर फुल सर्कल तो ऐसा होता था. सो हाफ ऑफ द सर्कल, देन वी से इट्स अ सेमी सर्कल. दिस इज हाउ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई शेप. क्लियर? तो स्क्वायर विल हैव ऑल साइड्स सेम, कॉर्नर्स विल बी 4 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल विल हैव 4 साइड्स 4 corners, however opposite sides are equal. Circle has no sides and corners. Triangle has 3 sides and 3 corners. Diamond has 4 equal sides, 4 equal corners, but like square, it will not have straight line, it will have slanting. And semicircle means, semi means half, so it's a half circle. Clear? Now what we are going to do is we are going to go for filling the blanks. A dash in the figure is a point where the 2 straight line meet. Clear? मतलब if I'm talking about 2 straight line मिलेंगे, this is 1 straight, ये straight, 2 straight line मिला, so ये जो point है जहाँ पे ये लोग दोनों मिलते हैं, what is that called? Corner. So I'll write here. Clear? मैं तुम लोग को सिखाया था पहले, where you find 2 straight line meeting, this is called corner, जहाँ पे मिलते हैं. A side can also be called and dash in a plane figure. जो मैंने side बनाया, you can call them as a line. Clear? जो भी sides बनता है, if you see a figure here, if I draw a figure like square,
कितने साइड है? 4 साइड, इसमें से मैं 3 साइड को मिटा देता हूँ. जब 3 साइड मिटा, what is this? This is just a straight line. So a side can also be called, guys, I'm so sorry, a side can also be called as edge. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ओके, आई हैव अ बुक हियर. देखो ये मेरा बुक है, ये बुक में ये साइड्स है. अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, सो इट्स बेसिकली एज व्हाट आई हैव. सो अ साइड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन एज. माई मिस्टेक, इट्स नॉट लाइन. इफ यू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर साइड देन दैट्स लाइन, बट दिस इज एन एज इन अ प्लेन फिगर. सो अगर मैं ये स्क्वायर शेप में बात करता हूँ, सो दिस इज वन एज, सेकेंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज. और साइड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन एज. A square has dash equal sides. Square में हम लोगों ने काउंट किया था कितने? 1 2 3 4. A square has 4 equal sides. A rectangle has 4 corners. हम लोगों ने पहले पढ़ा था कितने corners है? It has 4 corners. A dash has no sides or corner. कौन सा फिगर है जिसको साइड और कॉर्नर नहीं है? चलो जल्दी बताओ. Yes, it's circle. Circle के पास there are no sides and there are no corners. Okay, so what we have done is we have done with question number 1 and 2. Now we'll start with the next explanation part. Hi guys, it's a humble request to the parents to take a page, fold it, and whatever the extra part you have, just tear it off. है ना? एक सिंगल पेज लेने का, उसको फोल्ड करने का, और जो बाकी का नीचे का पार्ट है वो काट के just keep it aside. So your kid will have a page like this. It's a square shape. है ना? So what we're going to learn is, देखो ये simple सा पेज है which is square in shape. इसको जब मैं ऐसा फोल्ड करता हूँ, that is एक साइड को दूसरे साइड पे I fold it. So now I have a rectangle shape. देखो ये this is sleeping and this is sleeping line. Both same. Standing and standing line are same. So this is a rectangle. सबसे पहला कौन सा शेप था मेरे पास? Square shape. It has all sides same. 1 2 3 4. जब मैंने इसको fold किया, the square got converted into a rectangle shape. अगर मैंने इस rectangle को वापस, देखो जो छोटे जो sides है, इनको अगर मैंने वापस fold किया, again I'm getting a square shape with all sides same. Clear? If I take one of the corner और इसके सामने वाला corner के, if I join this, now count the number of sides I have. 1 2 3. 3 साइड मतलब I get a triangle. है ना? तो सिंपल. देखो स्क्वायर का जो ऑपोजिट कॉर्नर्स अगर मैंने ज्वाइन किया, आई एम गेटिंग अ ट्रायंगल. स्क्वायर का ऑपोजिट साइड अगर मैंने ज्वाइन किया, आई एम गेटिंग अ रेक्टेंगल. क्लियर? सो व्हाट वी लर्नड इज, व्हेन आई हैव अ स्क्वायर शीट एंड इफ आई फोल्ड इट विद द साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, आई एम गेटिंग अ रेक्टेंगल. एंड इफ आई फोल्ड इट यूजिंग द ऑपोजिट कॉर्नर, आई विल बी गेटिंग अ ट्रायंगल. ओके, the same you can go for this figure. My humble request to the parents क्या करो, अपने बच्चों को ना एक सर्कल राउंड में पेपर काट के दो. That's a circle. अगर वो सर्कल को मैंने फोल्ड किया, that becomes a semi circle. I'll do one for you right now. Just give me 1 second. I'm so sorry. मैंने काटा ये पूरा सर्कल नहीं हुआ. So बच्चों देखो, this is a circle. है ना? दिस इज अ राउंड सर्कल. इसको अगर मैंने फोल्ड किया कहाँ से भी, सो देखो ये सर्कल आधा हो गया, देन इट बिकम्स अ सेमी सर्कल. क्लियर? सो जब भी मैं सर्कल का आधा करता हूँ या फोल्ड करता हूँ, इट बिकम्स अ सेमी सर्कल. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज लाइन. लाइन मतलब मैंने अगर मेरे पेंसिल से खींचता गया, एक लाइन ऐसा आगे बढ़ा था, दैट इज कॉल्ड लाइन.
लाइन में कैसा होता है, देयर आर टू टाइप, वन इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन देखो देखो, दो लड़कियां हैं, ये लोग पकड़ के खींच रहे, तो रस्सी एकदम सीधा हो गया है, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन. चलो मेरे साथ बोलो, सीधा लाइन मीन्स इट्स अ स्ट्रेट लाइन. एंड यहाँ पे देखो लोगों ने जैसी रस्सी थोड़ा लूज किया तो कर्व हो गया है. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू lines, two types of line. Straight line means when two people pull a rope, it's damn extremely like a straight line. And we have curve line, when you loosen up something you get a curve, this is called curve. So we have learned about straight line and we learned about curve lines. Okay, now there is something what we are going to learn about is a vertical line and horizontal line. देखो, this is sleeping line. Sleeping line means it's horizontal line, and standing line means vertical line. Clear? So what we have learned about is a straight line, curve line, vertical line, that means it's a straight line, horizontal line means sleeping line. Okay, so we'll continue with question number 3. Okay.